تو شروع کرتے ہیں آزاد بخت کا قصہ۔ صبح ہو جاتی ہے اور وہ بادشاہ کو بلاتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ان چاروں درویشوں کو، فقیروں کو بلایا جاتا ہے، ان سے باقی کے جو دو قصے رہ جاتے ہیں ان سے سنانے کو کہتا ہے، لیکن وہ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں اور وہ سناتے نہیں ہیں۔ تو ان کو اطمینان دلانے کے لیے بادشاہ جو ہے وہ خود قصہ سناتا ہے اپنے دربار میں۔ اور جیسے ہی وہ قصہ شروع کرتا ہے تو دربار کی جو شروعات ہوتی ہے، دربار کا جو قصہ شروع ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دربار لگتا ہے، اور اس کے دربار میں جو ہے وہ بہت الگ الگ طرح سے جو ہے وہ تاجر آتے ہیں، سوداگر آتے ہیں، اور ایلیجی آتے ہیں۔ ایلیجی کہتے ہیں بہت بڑے وہ ہوتے ہیں، ان کو دربار میں کوئی ایک پد دے دیا جاتا ہے، وہ بھی اس کے دربار میں آتے ہیں۔ تو ایک بار اسی طرح سے کوئی سوداگر یا کوئی تجارتی جو ہے وہ ایک لال پتھر لے کے آتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ اسے جو ہے وہ بہت پسند آ جاتا ہے اور اسے وہ اپنے خزانے میں رکھوا دیتا ہے، اور پھر روزانہ اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے اپنے دربار میں اس کو پیش کرتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دن جو ہے وہ دربار لگتا ہے، سب لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے ہیرے جواہرات لے کے آتے ہیں، اور اسی وقت ایک چوکیدار ہوتا ہے، چوکیدار کہہ رہا سوری، ایک وزیر ہوتا ہے جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور سارے جو ایلیجی ہوتے ہیں وہ چیئروں پہ یعنی کہ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے جو خزانے کا دروگا ہوتا ہے اس سے وہ لال منگواتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اور سب کو اس کی تعریف میں جو ہے وہ سب اس کا استقبال کرتے ہیں کہ بھئی اتنا اچھا لال ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ تو وہیں پہ جو ایک وزیر جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے دربار میں اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو اور میری جان بخشی کی آپ وہ دیں، امید دیں مجھے کہ آپ میری جان بخش دیں گے، تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت اس کی بات کو اجازت دے دیتے ہیں کہ چلیے بھی آپ بتائیے۔ تو وہ کہتا ہے وزیر کہ ایک بادشاہ کو صرف ایک اس چھوٹے سے پتھر کی تعریف کرنے کے لیے، ان سب کی واہ واہ لینے کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہوتی کہ کوئی اتنا عالیشان بادشاہ، اتنا بہادر بادشاہ جو ہے وہ ایک پتھر کی تعریف کرے اور جو اسے یوں ہی کہیں فوکٹ میں مل گیا ہو، فری میں مل گیا ہو، نہ اس کے لیے اس نے کوئی محنت کی ہو۔ تو یہ بات سن کے جو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ ایک ادنا سا وزیر جو ہے وہ ہماری توہین کر رہا ہے۔ اسی بات کو لے کے وہ اپنے غلام کو یا اپنے جو اور کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ جائیے اس کا جو ہے وہ اسے قتل کر دیجیے، اسے قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو وہیں پہ جو ایلیجی بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آتا ہے ایلیجی اٹھ کے، اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے عہدے کو جو ہے وہ صحیح نہیں لگتا ہے، آپ کے عہدے کو کہ آپ جو ہے وہ چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ آپ اسے قتل کرنے کا حکم دے دیں، جبکہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے یا غلط کہی ہے۔ کیونکہ وزیر کہتا ہے کہ جس پتھر پہ، جس لال کی آپ جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں، اس سے بھی اعلیٰ درجے کے جو پتھر ہیں یا اس سے اعلیٰ درجے کے جو لال ہیں وہ ایک کسی سوداگر کے پاس ہے، اور ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک کتے کے گلے کے پٹے میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بات سن کے جو ہے وہ بادشاہ سلامت غصہ ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اور پھر ایلیجی جو ہوتا ہے اس کو سمجھاتا ہے کہ جو بات وزیر نے کہی ہے کیا پتہ وہ سچ ہو، اور آپ کے اوپر خواہ خواہ جو ہے وہ قتل کا گناہ ہو جائے، تاکہ پھر آپ کو جب قیامت کے دن اس کا جواب دینا جو ہے وہ آپ کو بھاری پڑ جائے۔ اسی لیے وزیر کی بات کو جو ہے وہ آپ مانیے، اور اسے جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم مت دیجیے، اسے جو ہے آپ جو ہے وہ قید دے دیجیے 1 سال کی، تاکہ جب اگر اس بات کی کبھی آگے آنے والے مستقبل میں بات پتہ چل جائے تو آپ جو ہے وہ اس خون کی جو سزا ہے اس سے بچ جائیں۔ تو ایل جی کی بات جو ہے وہ سن کے اس کو کنویں میں ڈال دیتا ہے، اور اس کنویں کا نام ہوتا ہے پنڈت گار، نام ہوتا ہے اس کنویں کا، اس میں اسے وہ قید کر دیتا ہے، اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ واپس اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ جب جو وزیر ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے، خاص طور سے اس کی بیگم کو، تو پورے گھر میں، پورے محل میں جو ہے وہ کوہرام مچ جاتا ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے، اور وہ روتے بلکتے ہوئے اپنے گھر آتی ہے وزیر کی بیگم، اور جو اس کی بیٹی ہوتی ہے جو 14-15 سال کی ہوتی ہے، وہ گھر میں کھیلتی رہتی ہے، گڈا گڑیا کا کوئی کھیل، وہ آ کے اس کے گال پہ 5-6 تماچے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش ہمارا کوئی لڑکا ہوتا تو آج وہ اپنے باپ کو اس ظالم بادشاہ کے چنگل سے چھڑا لاتا، اور تو لڑکی ہوئی ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتی ہو، اور تم جو ہے وہ وہاں سے اپنے باپ کو بھی چھڑا کے نہیں لا سکتی ہو، تو نہ ہوتا کم از کم اگر اندھا لڑکا ہوتا تو بھی کام چل جاتا۔ تو اس کے جواب میں وہ لڑکی کہتی ہے کہ اندھا لڑکا کس کام کا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، یعنی کہ وہ بہت لعنت ملامت کرتی ہے لڑکی ہونے کی، جو آج بھی ہے۔ آج کے ماحول میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کی لڑکی ہو جائے تو اس کے جو چہرے کی خوشی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، لڑکی بھی بہادر ہوتی ہے، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو اسی بات کو لڑکی جو ہے وہ دل پہ لے لیتی ہے اور اپنے دادا سے بات کرتی ہے۔ دادا
वो चाहती है लड़की कि मैं अपने वालिद को छुड़ाऊं, लेकिन कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि उसने जो बात बताई है वो निशापुर में एक जगह है, निशापुर में, वहां पे वो बादशाह रहता है और उसके कुत्ते के पास ये बात थी कि उसके पास एक कुत्ता है और उसके 12 लाल हैं। तो वो अपने दादा से कहती है कि मुझे जो है तिजारत के लिए या सफर पे निकलना है, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे ये काम करना है जो मेरे ऊपर तोहमत लगी हुई है कि मैं लड़की हूँ, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। वो अपने दादा से बहुत जिद करती है, बहुत मिन्नतें करती है, और दादा की जिद करने पे और मिन्नतें करने के बाद आखिर दादा जो है वो मान जाता है। उसके लिए सारे सफर का, सारी तिजारत का, ऊंट, हीरे जवाहरात, उसको जो है वो पूरा क्या देता है, सामान देके तैयार कर देता है, और रात को किसी वक्त जो है वो उसे महल से निकाल देता है और वो चली जाती है। सुबह पूरे शहर में जो है वो, महल में जो है वो पूरी खबर फैल जाती है कि वजीर की जो बेटी है वो गायब हो गई है। और लेकिन बेटी जब घर से बाहर निकल जाती है, चाहे वो पूरी रात रहे या कुछ घंटे रहे, खासकर रात में, तो ये इल्ज़ाम लगा जाता है कि उसके करेक्टर पे, उसके आंचल पे या उसके इज्जत पे जो है वो दाग लगना शुरू हो जाता है कि भाई ये जो लड़की है वो बदजात है, इसकी जो काम है वो गलत तरीके से है। इस तरह से माशरे में आज भी होते हैं, अगर कोई लड़की जो है वो किसी वजह से देर से आ जाए या कहीं बाहर से चल जाए तो उस पर इस तरह के जो तोहमत है वो आम बात है, उस वक्त भी है और आज भी है, आप लोग जानते भी होंगे इस बात को। तो लेकिन माँ जो है वो बदनामी के डर से है ना इस बात को छुपाने की कोशिश करती है और इस बात को जो है वो दबा देती है। अब जो लड़की है जो निकली थी वो एक लिबास पहन के निकलती है, और वो लिबास होता है मर्दाना, और वो निशापुर के लिए रवाना हो जाती है। और वो जब रवाना होती है तो वो वहीं पहुंच जाती है जहां उसको जाना था। ऐसे बहुत सारे सफर करते हुए, तिजारत करते हुए वो आखिरकार वहां पहुंच जाती है जहां पर होता है ख्वाजा शक परस्त का जो सौदागर होता है। यहाँ पे वो जिस बाजार में ख्वाजा सरपरस्त की दुकान होती है, तो वहां के करीब में पहुंचते ही लड़की देखती है, जैसे ही उसकी नजर ख्वाजा सरपरस्त पर पड़ती है तो उसके मन में अंदर ख्याल आता है कि ये वही सौदागर है जिसका जिक्र दरबार में मेरे बाप ने किया था। लेकिन वो नहीं चाहती है कि मैं इससे जाकर पहले बात करूं। तो जैसे ही बाजार में एक दूसरे की नजर मिलती है, ख्वाजा सरपरस्त की और वजीर जादी की, उसे मैं वजीर जादी कहूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, वजीर जादी की, क्योंकि जब ये वजीर जादी मर्दाना लिबास पहन के निकलती है तो अब अपना नाम तो नहीं रखेगी लड़की का, इसलिए वहां पे वो अपना नाम रखती है सौदागर बच्चा। अच्छा, ये नाम रखती है ताकि ये नाम जो है उसे मर्दाना लगे, लिबास में मर्दाना और नाम भी मर्दाना। तो सौदागर बच्चा या वजीर जादी, सौदागर बच्चा ठीक रहेगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सौदागर बच्चा जो है ख्वाजा सरपरस्त को देखता है और ख्वाजा सरपरस्त सौदागर बच्चा को देखता है, तो दोनों ही आपस में नजर मिल जाती है। ख्वाजा सरपरस्त कहता है कि ये बहुत हुसैन वो हसीन है, बहुत सारे मालदार हैं, इसके बाद बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। तो उसे पता चल जाता है कि ये किसी तरह से जो है वो यहाँ पे सौदागरी करने आया है। लेकिन जो ख्वाजा बच्चा, सौदागर बच्चा होता है, वो पहल करने नहीं चाहता कि मैं पहल करूँ उससे बात करने की। तो जो ख्वाजा सरपरस्त है वो अपने एक गुलाम हबशी को भेजता है कि जाइए उन्हें बुला के लेके आइए। तो जैसे ही सौदागर बच्चा उसकी तरफ आता है तो वो देखता है कि उसकी जो दुकान है या उसका जो कारखाना है वहां पर दो पिंजरे हैं, जिसमें दाईं तरफ बड़ा भाई है, यानी कि दो इंसान है जो पिंजरे में कैद है, और जो बाएं वाला है उसमें छोटा भाई यानी कि मंझला भाई है, वो कैद है। और वहीं उसके पास बैठा किनारे पे दाईं की तरफ कुत्ता है, जिसका किस्सा जो है उसके वालिद ने, वजीर ने जो है वो दरबार में सुनाया था। वो तो देख के बिल्कुल यकीन हो जाता है उसे कि बिल्कुल जो मेरे मन में ख्याल था वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो मेरे बाप ने बात कही थी दरबार में वो सही है कि एक ऐसा सौदागर है जिसके पास कुत्ता है और उस कुत्ते के पास 12 लाल हैं, यानी कि मेरा बाप जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं, ख्वाजा सरपरस्त और सौदागर बच्चा। तो सौदागर बच्चा और ख्वाजा परस्त जब आपस में बात करते हैं तो सौदागर बच्चा कहता है कि ठीक है, अब मैं चलने की इजाज़त चाहता हूँ, अब मुझे और भी काम है, मुझे और तिजारत करनी है, क्योंकि मेरा जो पहला सफ़र है तिजारत में, मेरे माँ बाप जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, और इसलिए जो है अब ये जिम्मेदारी मेरे पर आ गई है ताकि मैं अब जो है वो अपना घर चला सकूँ। तो सौदागर बच्चे की ये बात सुन के जो ख्वाजा सरपरस्त है वो कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है मेरे मेहमान बन के रहिए और मेरे साथ जो है वो रहिए। तो वो सौदागर बच्चा कहता है नहीं, मेरे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं और बहुत सारा सामान है, मैं उसे सहरा में छोड़ के आया हूँ। सहरा कहते हैं किसी एक जगह को, बाजार से वो थोड़ा सा अलग होता है। तो वो कहता है ठीक है, मेरा एक महल है, आप उसमें आकर रह लीजिए। तो वो बात मान लेता है सौदागर बच्चा, और
क्योंकि सौदागर बच्चों को तो ये काम था कि उस सौदागर को यानी कि ख्वाजा सरपरस्त को और उसके कुत्ते को वहां पे आजाद वक्त के पास ले जाना था, तो उसे तरकीब बनाने के लिए कुछ वक्त की जरूरत थी, तो इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और उसके साथ रहना शुरू कर देता है, ख्वाजा सरपरस्त का और ख्वाजा सौदागर बच्चे के साथ। तो जैसे ही उसको अपने महल में लेके जाता है, खाने की बात आती है, तो कुत्ता उसके साथ हमेशा जाता है, और वो दो पिंजरे भी, वो भी जिसमें इंसानी थे उसके दोनों भाई, वो भी उसके साथ जाते हैं। तो जैसे ही दस्तरखान बिछता है तो सारी खाने उस पर लग जाते हैं, और जैसे ही खाने की शुरुआत होती है तभी वो कहता है कि उस कुत्ते को लाइए, जो वहाँ ऊपर संदली पे बैठा हुआ होता है, वो सब खाना खाता है, और जो जो उसके गुलाम होते हैं कुत्ते को बड़े अच्छे से उसका मुंह हाथ रुमाल से पूछते हैं और उसे वापस ले जाते हैं। ये बात देख के सौदागर बच्चा जो होता है वो घिन खाता है कि ये कैसा इंसान है जो एक कुत्ते का झूठा मेहमानों को खिला रहा है। इस बात से आके जो है वो सौदागर बच्चा खाने से मना कर देता है, लेकिन जो ख्वाजा सरपरस्त है वो उसे बताता है कि आप बेफिक्र रहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो है इस खाने को खा सकते हैं, मैं भी खा रहा हूँ आप भी खाइए। लेकिन जो सौदागर बच्चा होता है यानी कि जो असल में वजीर जादी होती है, वो खाने को मना कर देती है कि पता नहीं कौन सा इसका मजहब है, किस ताल्लुक से रखता है, कैसा है, एक कुत्ते का झूठा खिला रहा है। तो बड़ा इसरार करता है ख्वाजा सरपरस्त कि खा लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो फिर उसे बताता है ख्वाजा सरपरस्त को, तो बेफिक्र रहिए कि मेरा जो ईमान है वो, मैं मुसलमान हूँ और मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। तो वो फिर उससे कुत्ते के बारे में पूछती है कि आप कुत्ते का झूठा क्यों खिला रहे हैं। तो वो कहता है कि ये एक राज है, और इस एक राज को छुपाने के लिए मैं दुगना महसूल देता हूँ सरकार को कि इस राज का जो है वो आप राज रखें कि मैं कुत्ते को पहले खाना क्यों खिलाता हूँ। इस बात को वो राजी रखना चाहता है, और वो बड़े इसरार करने के बाद यानी कि सौदागर बच्चा बड़ा इसरार करता है कि मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन ख्वाजा सरपरस्त जो है वो उसे नहीं बताता है कि वो पहले क्यों झूठा खाना खिलाता है कुत्ते को, वो पहले कुत्ते को खाना क्यों खिलाता है, बाकियों को उसके बाद क्यों खिलाता है। ये अभी तक यहाँ पे जो है वो एक राज ही बना रहता है। तो इसी तरह से जो है वो लगभग 2-3 महीने जो है वो गुजर जाते हैं सौदागर बच्चा और ख्वाजा सरपरस्त में, क्योंकि ख्वाजा सरपरस्त का कोई औलाद नहीं होती, इसीलिए वो उसे अपनी औलाद की तरह पालता पोसता है, क्योंकि उसकी उम्र भी इतनी ही होती है। लेकिन जब दोनों आपस में काम करते हैं तो उनमें आपसी लगाव हो जाता है, जैसा कि एक बाप बेटे में होता है। तो 2-3 महीने गुजर जाने के बाद जो है वो सौदागर बच्चे को जो है वो अपने घर वालों की याद आती है। तो वो कहता है ख्वाजा सरपरस्त से कि अब मुझे जो है वो जाना है, आप मुझे इजाजत दे दीजिए। लेकिन ख्वाजा सरपरस्त ये बात को कबूल नहीं करता है कि अब मैं इनसे जुदा हो जाऊंगा, अब ये मेरे साथ नहीं रहेगा। तो एक माँ बाप वाला रिश्ता उन दोनों के बीच में जो है वो जुड़ जाता है, क्योंकि एक औलाद था और एक अभी उसके बाप जो है उनको याद आ रही थी। तो उसमें बहुत सारी गुफ्तगू होती है। तो ना तो ख्वाजा सरपरस्त चाहता है कि सौदागर बच्चा जाए, और सौदागर बच्चा ये चाहता है कि ख्वाजा सरपरस्त किस तरह से वहां तक चले जाए, रोम तक, ताकि वो अपने बाप को रिहा करा सके। तो इसी तरह से बहुत बात होती है, बहुत इसरार करता है कि आप यहीं रुक जाइए, यहीं पे आप जो है वो सारी तिजारत कर लीजिए, मेरी जितनी भी जायदाद है ख्वाजा सरपरस्त वो आप ले लीजिए। उसे उसका सब वसीयत भी कर देता है, लेकिन सौदागर बच्चा जो है वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप इजाजत दीजिए कि मैं चल दूँ। लेकिन अब जो रिश्ता है वो जुड़ जाता है ख्वाजा सरपरस्त में और सौदागर बच्चे में, बाप बेटे का। अब वो उस पर जान निछावर करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है ख्वाजा सरपरस्त। तो ख्वाजा सरपरस्त कहता है ठीक है, आप यहाँ ही नहीं रुक रहे, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं मैं अपने साथ, मैं जो है वो आपके साथ चल देता हूँ आपके शहर, और मैं भी आपके माँ बाप से मिल लूंगा और मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। तो इस बात पे सौदागर बच्चा जो है वो राजी हो जाता है। सफर की तैयारी होती है, इराकी, तुर्की और साजो सामान, कुत्ते, पिंजरे, ऊंट, यानी कि जितना भी एक पूरा काफिला होता है वो पूरा तैयार होता है, और वो निकलते हैं रोम की तरफ। रोम की तरफ वो सफर के लिए निकलते हैं दोनों, और जब सफर होता है तो वो पहुंच जाते हैं वहीं पे वापस रोम में बादशाह के पास। तो जब वहां पहुंचते हैं काफिले के पास, तो जो वजीर जाती होती है यानी कि जो सौदागर बच्चा होता है वो कहता है कि आप अपना काफिला महल के बाहर किसी दूर इलाके में रख लीजिए, मैं आपके अंदर यानी कि महल शहर के अंदर आपके रहने का इंतजाम करके वापस लौट आती हूँ। तो जो बात सौदागर होता है यानी कि ख्वाजा सरपरस्त, वो इस बात को राजी कर लेता है और कहता है कि ठीक है, आप जाइए, 2-3 दिन में अपना इंतजाम करके वापस आ जाइए। तो जो वजीर जाती है अपने महल में आती है, अपनी माँ को जो है वो सारा माजरा सुनाती है कि भाई ऐसे हुआ है, और वो बात हकीकत है। तो जैसे काफिला वहां पे रुका हुआ होता है जो बाग में बाग, और जो लड़की होती है वजीर जाती है वो अपने माँ को सारा सुनाती है।
फिर वो वापस आ जाती है बता के अपनी माँ को कि मैं ऐसे ऐसे करके लेके आ गई हूँ। हालांकि माँ जो है उस पर उस वक्त भी तोहमत लगाती है कि तूने जो है वो हमारे खानदान की नाक कटा दी है, और तू इतने दिन कहाँ रही, और तूने जो है पता नहीं कौन कौन से काम किए। लेकिन वो जब पूरा माजरा सुना देती है तो उसकी माँ को जो है वो बहुत ही वो होता है, क्या होता है, एक खुशी होती है कि भाई मेरी बेटी ने जो है वो काम किया है, वो काम किया है जो कोई बेटा भी नहीं कर सकता। इससे माँ जो खुश हो जाती है, और जो बेटी के सर पे पगड़ी होती है वो अपने माँ के गर्भों में जो है वो रख देती है, और उससे इजाजत मांगते हैं कि अब मैं जो है जो बाहर है ख्वाजा सरपरस्त उसको लाने की इजाजत चाहती हो। तो जैसे ही वो शाम के वक्त जाती है बाग में ख्वाजा सरपरस्त के पास, तो रात हो जाती है। तो वहाँ पे फिर एक छोटा सा प्रोग्राम किया जाता है, जश्न मनाया जाता है। तो रास्ते में जब जहाँ पर जश्न, जहाँ पे काफिला रुका हुआ था, वहाँ पे जो है एक एलईडी जा रहा होता है, और ये एलईडी जो है वो वही होता है जो उस वक्त बादशाह के वहाँ था, और उसकी नजर उस कुत्ते पे पड़ जाती है जो ख्वाजा सरपरस्त के पास था। तो यहाँ से देख के वजीर अगले दिन सुबह जाके आजाद बख्त को बताता है कि जो वजीर ने बात कही थी कि वो कुत्ता है और उसके गले में जो लाल है वो बिल्कुल हकीकत थी। तो बादशाह जो है वो खुश हो जाता है और सबको हुक्म देता है कि उस बादशाह को यानी कि उस ख्वाजा सरपरस्त को दरबार में लाइए, हम उससे मिलना चाहते हैं, उसके काफिले को देखना चाहते हैं, उसके हीरे जवाहरात को देखना चाहते हैं। तो एक गुलाम जाता है ख्वाजा सरपरस्त के पास कि आपको हमारे बादशाह ने बुलाया, बादशाह सलामत ने बुलाया, आप हाजिर हो। तो ख्वाजा सरपरस्त और सौदागर बच्चा दोनों जाते हैं। अब जितने भी दरबार के लोग होते हैं और बादशाह सलामत होते हैं, वो सौदागर बच्चे को जो है वो ख्वाजा सरपरस्त का बेटा मानते हैं। जब वो जाता है अपना सारा सामान लेके जाता है, क्योंकि किसी भी बादशाह के सामने जाएंगे आप लोग तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, तो वो वहां से अपना सब हीरे जवाहरात और वो कुत्ता और वो दोनों पिंजरे लेके जाता है। जैसे ही वहां पे दरबार में जाता है वो अपने सारे साजो सामान खोल के दिखाता है, और वो खुश हो जाता है कि आप जो है वो सब ले लीजिए, मेरी जो है वो जान बख्श दीजिए। क्योंकि बादशाह सलामत को ये बात नागवार गुजरती है कि उसने दो इंसानों को पिंजरे में क्यों कैद के रख के रखा, इसके इवज में जो है इसे कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वो कहता है, बादशाह जब उसे कत्ल करने का हुक्म देता है तो जो ख्वाजा सरपरस्त होता है वो कहता है कि आप मेरा सारा सामान ले लीजिए, जितना भी मेरे पास है हीरे जवाहरात ले लीजिए, लेकिन इनको कत्ल मत कर दीजिए। लेकिन एलीजी जो होता है वो बड़ा समझदार होता है, वो कहता है कि बादशाह से कि आप इनको क्यों मार रहे हैं, इनकी सजा तो इनको मिल रही है। असल किस्सा ये है कि आप इनसे पूछिए ख्वाजा सरपरस्त से कि इन्होंने इन दोनों को कैद में क्यों रख रखा है, और इसके लाल पट्टे का किस्सा क्या है। तो वो कहता है कि आप मुझे, बादशाह के आप मुझे इनके बारे में बताइए। तो वो कहता है कि ये भी एक राज है, ये मैं राज किसी को नहीं बताता, ना ही इसने वजीरजादे को बताया था जब खाने की बात हुई थी, ना ही ये बताता है। तो यहाँ पर जो बादशाह होता है वो कहता है कि इसे कत्ल कर दीजिए, हमें नहीं जानना है। लेकिन अब जो है वो जब जान होती है, जान सबसे ज्यादा कीमती होती है, जब बात जान पे बन जाती है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरकीब निकालती है। तो यहाँ पर जो है वो ख्वाजा सरपरस्त किस्सा सुनाता है दोनों का, अपने भाइयों का और उस लाल का। अब यहाँ से दो किस्से शुरू होंगे, यहाँ से इसमें तीन किस्से हैं वैसे तो, एक शाह बंदर का है और दो भाइयों का है और ये कुत्ते वाला है। मैं तीनों किस्से आपको बता रहा हूँ यहीं से। पहला किस्सा मैं आपको बताऊंगा इसका दोनों भाइयों का, कि उनको जो है सारा माल दौलत जो है वो उसके छोटे भाई को घर से निकाल देते हैं। वो चला जाता है और उसको जो है वो कहीं ऐसे बियाबान जंगल में रहता है, और उसको जो है वो कुएं में कैद करवा देते हैं किसी बादशाह के जरिए से। और फिर वहां पर जो वो कुत्ता, वो कुएं में कह रहा हूँ, वो किसी सफर में निकलते हैं जहाज में। तो यहाँ पर जहाज में जब तीनों भाई निकलते हैं साथ में, तो इसमें जो इसका मंझला भाई होता है, ख्वाजा सरपरस्त का बड़ा भाई होता है, लेकिन तीसरे में क्या होता है, मंझला भाई होता है। तो जो ख्वाजा सरपरस्त होता है उसकी एक लड़की होती है, जो मंझला भाई होता है वो उस पर आशिक हो जाता है, अपने भाई की बेटी पर आशिक हो जाता है। और ये दोनों लड़की यानी कि ख्वाजा सरपरस्त की लड़की और मंझला भाई दोनों मिलके ख्वाजा सरपरस्त को जो है वो मारने का प्लान बनाते हैं, जिसमें इनकी मदद करता है इनका बड़ा भाई। तो ये एक सफर पे निकलते हैं जहाज में। जैसे ही ये दरिया में पहुंचते हैं तो वहां पर जो है जब दरिया गहरा आ जाता है, वहां पर जो है ये धक्का दे देते हैं अपने ख्वाजा सरपरस्त को, अपने सबसे छोटे भाई को, दोनों भाई मिलके। लेकिन जैसे ही वो धक्का देते हैं तो वहीं पे एक कुत्ता होता है, वो उनकी जान बचा लेता है ख्वाजा सरपरस्त की, और उसे किनारे पर ले जाता है। इसी तरह से वो बहुत दिन भूखा रहता है, ख्वाजा सरपरस्त जो है वो बहुत दिन तड़पता है, भूखा रहता है। और जो है वो जब वो बियाबान जंगल में घूमता रहता है प्याज के खाने के एवज में, तो उसे एक लड़की मिलती है जो तुर्की होती है, एक लड़की होती है तुर्की होती है, वो उसे अपने घर ले जाते हैं ख्वाजा सरपरस्त को।
اس کی خاطر توجہ کرتی ہے، اس کو بہت اچھے سے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، اور خواجہ سرپرست جو ہے وہ تجارت کرنے لگتا ہے۔ جب وہ تجارت کرنے لگتا ہے تو وہ کسی تجارت کی غرض سے کسی ایک شہر میں جاتا ہے، جہاں پر جو ہے اس کے دونوں بھائی اسے دکھ جاتے ہیں۔ بس وہاں پر جب دونوں بھائی دکھ جاتے ہیں تو اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بھیڑ میں وہ اسے پکڑوا لیتا ہے، خواجہ سرپرست کو پکڑوا دیتا ہے، اور ایک اس وقت کا جو وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے حوالے یا اس کے وزیر کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے، یعنی کہ دونوں بھائی جو ہیں، الزام لگاتے ہیں خواجہ سرپرست پہ کہ انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی کی ہے اور ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ان دونوں بھائیوں نے کی تھی۔ تو جو بادشاہ وہ ان کی بات کو قبول کر لیتا ہے اور خواجہ سرپرست کو جو ہے وہ اس کنویں میں قید کروا دیتا ہے، اور کنویں میں قید کروانے کے بعد جو ہے وہ دونوں بھائی وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور خواجہ سرپرست کنویں میں قید ہو جاتا ہے۔ اب کنویں میں آلریڈی دو قیدی اور ہوتے ہیں جن کو روزانہ صبح شام جو ہے وہ اس بادشاہ کی طرف سے کھانا آتا ہے، لیکن خواجہ سرپرست کو کچھ نہیں آتا ہے۔ تو جو کتا اس کی جان بچاتا ہے وہ ہوٹلوں پہ جا کے کتوں سے لڑ کے، یا آپ دیکھتے ہیں نا کتوں پہ، ہوٹلوں پہ جو کتے ہوتے ہیں وہ روٹی چھینتے ہیں، کسی گھر میں جاتے ہیں وہاں سے کتا روٹی چھین کے لاتا ہے، کوئی اسے ڈال دیتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے اپنے منہ میں دبا کے، یعنی کہ کتے کا جھوٹا جو ہے وہ خواجہ سرپرست کھاتا ہے، لگ بھگ اسے وہاں پہ کافی دن گزر جاتے ہیں اور وہ زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہے، کتا اس کی ہر مدد کرتا ہے ہر بار، اور جب کنویں میں قید ہوتا ہے تب بھی۔ تو اسی طرح سے جیسے وہ بازار جاتا ہے روٹی ووٹی لاتا ہے تو وہاں پہ اسے ایک ملکہ ملتی ہے، اور اس کا جو آنچل ہے اسے اپنے منہ میں پکڑ کے وہ اس کنویں کے پاس لاتا ہے، اور کنویں میں جو ہے وہ کسی طرح سے خواجہ سرپرست کو اس لڑکی کے دوارا، اس لڑکی کے ذریعے جو ہے وہ وہاں سے نکال لیتا ہے رات کے پہر میں۔ وہ ملکہ جو ہے وہ خواجہ سرپرست کو اپنے گھر لاتی ہے، اس کی عزت و وہ کرتی ہے، خاطرداری کرتی ہے، اور اس سے پوچھتی ہے، اور جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ بتوں کو پوجتی ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتی، وہ بتوں کو پوجتی ہے، اور وہ ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک شہر ملکہ ہوتی ہے، وہ بادشاہ کے وہاں پہ رہتی ہے۔ ملکہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے محل میں رہے گی، تو وہ سیدھا اس خواجہ سرپرست کو محل میں نہیں لے کے جاتی، ایک دائی ہوتی ہے، دائی کے ذریعے جو ہے وہ اسے اپنے دائی کے آس پاس ہی کوئی مکان کرائے پہ دلا دیتی ہے اور اسے وہاں پہ رکھتی ہے، دائی کو اس کو دیتی کہ آپ جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کیجیے۔ تو جب دیکھ بھال کرتی ہے اسے تندرست کر دیتی ہے اور خواجہ سرپرست ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، تو ملکہ اس سے ملنے آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھتی ہے، تو وہ کہتی ہے، وہ اپنی پوری داستان سناتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میں مسلمان ہوں، اس طرح سے ہوں۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ تم ایسے مذہب کو فالو کرتے ہو، ایسے مذہب کو مانتے ہو جس کا خدا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، تو میں کیسے یقین کر لوں؟ تو خواجہ سرپرست جو ہے وہ اسے دین کی اور جو مذہبی باتیں ہیں وہ بتاتا ہے، اور جب وہ لڑکی ہوتی ہے یعنی کہ جو ملکہ ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے جو ہے وہ ان سب چیزوں سے جو وہ آزاد کر دیا، میں پہلے بتوں کی پوجا کرتی تھی اور میں اس طرح سے ہوں۔ تو وہ مطلب ایسے اس طرح سے بات کرتا ہے کہ مذہب اسلام میں آ جاتی ہے، وہ اسے کلمہ پڑھواتا ہے، اور پوری رات جو ہے وہ استغفار کرتی ہے، اور پھر وہ واپس اپنے محل میں چلی جاتی ہے۔ پھر کچھ دن بعد وہ پھر اس سے ملاقات کرنے آتی ہے خواجہ سرپرست سے، اور خواجہ سرپرست کہتا ہے کہ آپ دونوں ہیں نا ایسا کرتے ہیں کہ بھاگ جاتے ہیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں جو ہے وہ آپس میں کیا کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھاگنے کی ترکیب کیسے بنے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو خواجہ سرپرست کہتا ہے کہ ایسا کیجئے کہ آپ مجھے فلاں رات کو فلاں وقت پہ وہاں مل جائیے، جس میں جو آپ کی مدد کرے گی وہ دائی کرے گی، کیونکہ یہ بات صرف دائی کو پتا تھی کہ ملکہ جو ہے وہ خواجہ سرپرست سے ملنے جاتی ہے۔ تو جب ملکہ آتی ہے رات کو دائی کے ذریعے خواجہ سرپرست کے ساتھ، تو وہ آ جاتی ہے، ایک میلے کچیلے کپڑے پہن کے آتی ہے جس سے لوگ اسے نہ پہچانے، اور دونوں جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں اور واپس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ایک جہاز کے ذریعے جو شادی کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ملکہ کو ایسے نہیں رکھ کے لے کے جاتا، تو کیونکہ وہ خواجہ سرپرست تجارتیں کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ملکہ کو ایک صندوق میں بند کر دیتا ہے تاکہ کوئی پہچانے نہ، کیونکہ وہاں پہ ایک رواج تھا کہ جو بھی تجارت کے لیے لونڈی لے کے جاتا تھا اس کو صندوق میں بند رکھتا تھا۔ تو جیسے صندوق میں لے کے جہاز جاتا ہے تو وہاں پہ اس وقت کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا ایک وزیر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شاہ بندر، یہاں آ جاتا ہے شاہ بندر کا۔ شاہ بندر جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کو لونڈی دیتا ہے کہ بھئی آج جو خوبصورت حسین لونڈی ہوگی وہ بادشاہ کے یہاں جائے گی۔ تو جب شاہ بندر جو اس جہاز پہ ریڈ کرتا ہے تو وہاں پہ خواجہ سرپرست کے صندوق میں بھی لڑکی ہوتی ہے جو اس کا یہ ہوتا ہے
मल्लिका होती है उसको जो है वो पकड़ के ले जाता है शाह बंदर का। शाह जो है वो मल्लिका को वहां से लेके चले जाता है, और यहीं पर शाह बंदर जब मल्लिका को लेके चले जाता है बादशाह के पास, और उसमें से जो खराब लड़कियां होती हैं, जो बदसूरत होती है, उनको तो वापस भेज देता है, लेकिन मल्लिका को नहीं भेजता है। तो इससे ख्वाजा सरपरस्त जो है वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, और इसकी तलाश में वो जो है वो आगे निकल जाता है। यहीं उसको जो है वो 12 लाख मिलते हैं जब वो ढूंढता रहता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और वो अपने मल्लिका को ढूंढ लेता है जो शाह बंदर के पास थी, तो उससे वो वहां से वापस लेके आ जाता है, और फिर अपने एक अलग महल बनाता है और जिंदगी जो है वो गुसर बसर करने लगता है, और उससे शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो वो एक महल बनाता है और अपना कारोबार अच्छे से बनाता है। तो यहीं पे इसके फिर दोनों भाई उसे एक और बाजार में मिलते हैं कि ख्वाजा सरपरस्त इतना वो हो जाता है, क्योंकि जो दोनों भाई होते हैं उनको भीड़ जो है वो पीट रही होती है, क्योंकि उनके ऊपर क्या हो जाता है, बहुत सारा कर्ज हो जाता है। तो भीड़ से अब भाई कैसा भी हो, भाई भाई होता है, खून का रिश्ता कैसा होता है। तो ख्वाजा सरपरस्त उन भीड़ से अपने दोनों भाई को छुड़ा के अपने महल में ले आता है, अपने महल में जो है वो छुड़ा लिया था, और अपने महल में उनकी खातर तवज्जो करता है, और लगभग 3-4 साल जो है वो इसी तरह से उसके उस महल में गुजरते हैं। और कभी भी वो जो उसकी बेगम थी उनकी नज़र अपने भाइयों पे जो है वो कभी पड़ने ही नहीं देती। लेकिन फिर यहीं पे जो मंझला भाई है, जो मंझला भाई होता है, वो उसकी बेगम को एक मर्तबा बेपर्दा देख लेता है, और वो उस पर आशिक हो जाता है, और प्लान बनाता है फिर से दोबारा से अपने भाई को मारने का। लेकिन यहाँ पे जो है वो अपने भाई को जो है वो नाकाम हो जाता है मरने पे। इस तरह से और भी खता होती है। तो यहाँ पे ख्वाजा सरपरस्त एक बात कहता है, एक खता, दो खता, तीसरी खता, मादरे खता। एक खता, दो खता, तीसरी खता, मादरे खता। क्योंकि जब उसकी बेगम पे वो नजरें डालता है या कत्ल करने का हुक्म बनाता है, तो ये खता जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जो है उसका एक गुलाम होता है ख्वाजा सरपरस्त का, वो कहता है कि इसे मारिए मत, इन्हें कुछ ऐसी सजा दीजिए जो ताउम्र तक ये याद रखे। तो इसीलिए उनको जो है वो 2 पिंजरे में कैद कर लेता है, और हमेशा क्या रखता है, अपने साथ रखता है। यहाँ तक इनके किस्सा हुआ आपका, दोनों को पिंजरे में करना। ये बात सुन के जो है जो बादशाह होता है वो कहता है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया, यानी कि आपने जो इनके साथ किया है वो बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब वो उससे किस्सा पूछता है जो 12 लाल का, तो वो वही कहता है कि जब मैं मल्लिका को ढूंढ रहा था तब मुझे जंगल में 2 अलग अलग किस्म के जो है वो मुझे इंसान मिले, जिसमें से एक लड़का था एक लड़की थी। वो बहुत भूखे थे, जो अजायब जार के रहने वाले थे, और वो पूरी दुनिया का सफर करने निकले थे, और उनके पास जो है बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। तो मैंने उनसे खरीद लिए, और ये जो हीरा जवाहरात जो है वो मेरे पास आ गए, और इस कुत्ते को मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये इंसान से ज्यादा वफादार है मेरे लिए। इसलिए मैं जो है ये करता हूँ, और इसीलिए लोग मुझे जो है वो ख्वाजा सरपरस्त कहते हैं, यानी कि कुत्ते को पूजने वाला। हालांकि मैं पूरा पक्का मुसलमान हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, हज करता हूँ, ज़कात देता हूँ, खैरात देता हूँ, मतलब जो एक मुकम्मल मोमिन के लिए वो सारे काम मैं करता हूँ। लेकिन इसने मेरी कई मरतबा जान बचाई है, इसलिए ये मुझे इंसानों से भी ज़्यादा अजीज है। तो इस बात से जो बादशाह होता है वो बहुत खुश होता है। फिर जो उसका बेटा बना हुआ था, यानी कि सौदागर बच्चा, वो बादशाह सलामत से कहता है कि इनकी आपने पूरी दास्तान सुन ली, अब मेरी भी सुन लीजिए। वो बताती है पूरा किस्सा, वही वाला जो उसके वजीर ने उसको बताया था कि जो वजीर है वो मेरे वालिद हैं, आप उनको छुड़ा दीजिए या उनको छोड़ दीजिए। इस बात से जो है वो खुश हो जाता है कि भाई जो बात कही थी वो बिल्कुल सच्ची थी। एली जी इस बात की तहकीक करता है, तस्दीक करता है कि ये उसी की ही बेटी है, कभी ऐसा तो नहीं कि कोई फर्जी बन के आ जाए या कोई अलग से आ जाए। तो ये सारी चीजें हुई बादशाह आजाद वक्त के दरबार में, और उसको पंडित गार से निकाला जाता है और उसको आजाद कर दिया जाता है। फिर ख्वाजा सरपरस्त को पता चलता है कि ये तो लड़की है, तो बादशाह सलामत जो है ख्वाजा सरपरस्त की और लड़की की शादी कर देता है। उनके जो बच्चे होते हैं उनको अपने दरबार में बड़े बड़े ओहदे पे और बड़े बड़े मनसबदार जो है वो उसे अता करता है। इस तरह से जो है वो आजाद वक्त का जो किस्सा है वो खत्म हो जाता है, और फिर चौथा किस्सा शुरू होता है जो तीसरे दरवेश का होता है।